Hello everyone, I hope you all are doing great. In today's video, I'll come up with the new topic that is Karl Fisher titration. Actually, I'll come across this titration when I'll be reading about the various analytical instruments. So this is one of the titration performed in a pharmaceutical industries. This titration come in detail under USP chapter number 921. And I think we will discuss this in detail in next slides. First of all, what it is. The question comes into our mind what this reaction is. So it is basically a titrometric determination of a water. इसमें basically आप क्या करते हो कि you are going to find out the moisture content of a water in any kind of a tablet or a drug product. So basically this reaction is used in the pharmaceutical industry as a sample, one of the quality assurance sector. In this reaction, the quantitative oxidation reaction occur between water of your component with the anhydrous sulfur dioxide and iodine in the presence of buffer and alcohol. Okay. So during exam, question may be asked that why we are not prefer pyridine as compared to pyridine or imidazole. So the basic reason behind that is pyridine is carcinogenic. It may affect our reproductive system during long-term exposure to this chemical. So that's why some pharmaceutical industries avoid to use pyridine as a base. And this reaction I have been given you that water is basically a sample which you are going to test. तो उसमें आप मॉइस्चर कंटेंट चेक कर रहे हो तो उस टेबलेट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट किसके साथ रिएक्ट करेगा सल्फर डाइऑक्साइड और आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस वेदर pyridine होगा या फिर इमिडाजोल होगा एंड कोई सा भी बेस होगा जैसे मेथनॉल हो सकता है तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन परफॉर्म होगा इन स्टेप्स और अगर इफ एनीबडी आस्क यू दैट हाउ यू गोइंग टू प्रिपेयर द केएफ रिएजेंट तो आप क्या करोगे मेक अ सोल्यूशन बाय मिक्सिंग ऑफ 170 ml ऑफ अ pyridine विद द 670 ml ऑफ मेथनॉल तो जो pyridine यानी कि RN और ROH का कंपोजिशन कैसे लोगे 1000 के 170 ml pyridine एंड 670 मिथेनॉल उसमें आप 125 ग्राम ऑफ आयोडीन ऐड करोगे टू द सोल्यूशन एंड देन कूल इट डाउन क्योंकि बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हीट इट अप होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो कूल इट and take a 250 ml of graduated cylinder in which you add 100 ml of pyridine and place it in ice bath to it again cool it down pass in sulfur dioxide. Sulfur dioxide gas is basically a rotten egg like smell so उसको उसमें से पास करने के बाद कब तक पास करोगे till it reaches to 200 ml क्लियर तो KF reagent प्रिपेयर करना है एंड टाइट्रामेट उसके बाद है प्रोसीजर प्रोसीजर इस KF टाइट्रेशन हम दो तरीके से परफॉर्म करते हैं फर्स्ट इज द वॉल्यूमेट्रिक डिटर्मिनेशन एंड द सेकंड वन इज द कूलोमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक में जैसे आप टाइट्रेशन करते हो बिरट के अंदर एक अननोन सैंपल क्रिएट करते हो और टाइट्रेशन फ्लास्क के एंड पॉइंट अगर तो आयोडीन की प्रेजेंस की वजह से सोल्यूशन हमारा कलर्ड ही होगा सो वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ अनदर इंडिकेटर टू इंडिकेट द कलर तो उस हिसाब से उसके बाद एंड पॉइंट जब आप डिटरमिन करोगे इट शो विद द इधर नो कलर यानी कि ट्रांसपेरेंट कलर सोल्यूशन हो जाएगा और चेंजेस इनटू सम अनदर कलर तो इसमें दिस टेक्निक इज सुटेबल टू डिटरमिन द वाटर कंटेंट डाउन टू 1% ऑफ वाटर आप तब यूज करोगे जब आपका मॉइस्चर कंटेंट 1% से कम है The sample is dissolved in a KF reagent and a methanol and iodine is added to KF reagent. This end point is detected potentiometrically. आप इसे पोटेंशियोमीटर के थ्रू एनालाइज करोगे इसके एंड पॉइंट को और कूलोमेट्रिक डिटर्मिनेशन में एंड पॉइंट डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसीजर तो एनोड के थोड़ वाला प्रोसेस होएगा iodine required for KF reaction is obtained by anodic
जो आपका एनोड होगा उसमें आपके KF रिएक्शन होगी, आयोडीन उसमें डाला जाएगा, एंड द कैथोड नोजल आपके जो जिसको आप एनालाइज कर रहे हो। उसके बाद है कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड। कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड में आप यूज करते हो DST, which is disodium tartrate dihydrate. The question comes into our mind is why we are using this, because it is stable and a non-hygroscopic under normal condition. Itself dihydrate, but it's have fixed stoichiometry of 15.66% of a water content. तो मतलब इसको हम स्टैंडर्ड की तरह इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका कंटेंट जो स्टोक्योमेट्रिकली है स्टैंडर्ड हमें पता है, दैट इज 15.66। उसके बाद जो मॉइस्चर कंटेंट ऐड होएगा वो हमारे सैंपल से आया होगा। फिर उसके बाद है इसका KF कैलकुलेशंस आप कैसे परफॉर्म करोगे। इधर यू कैन डायरेक्टली 0.1566 into weight of molecular weight of DST in milligrams and volume of reagent consumed in a titration, या फिर नीचे जो फॉर्मूला समझाया हुआ है दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर को डिवाइड करोगे जब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ DST, यू कम अप विद द नंबर 0.1566 that will be multiplied by the weight of DST in milligrams and divided by the volume of reagent consumed in titration, which is in ml. Okay. उसके बाद है एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस क्या है? इट इज फिटेड फॉर डिटर्मिनिंग वाटर इन अ गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स। आप किसी में भी इसको यूज कर सकते हो। द कोलोमेट्रिक टाइट्रेटर हेल्प्स इन डिटेक्टिंग फ्री वाटर, डिजॉल्व्ड वाटर, इमल्सिफाइड वाटर। तो ये टाइट्रेशन बेसिकली हम यूज करते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है। मॉइस्चर कंटेंट चाहे बाउंड फॉर्म में हो, या फिर फ्री फॉर्म में हो, या फिर डिजॉल्व फॉर्म में हो, या emulsified form में, we are able to find out moisture content in any form through this titration. It is fast process which demands a minimal amount of sample preparation. This method is extremely accurate and a reliable one. That's why we use it in a pharmaceutical industry. And the limitation is that it is a destructive technique. Sample destruct हो जाता है हमारा। The solvent consumption is high and manual volumetric titration demand reloading during each determination. तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्वेंट कंजप्शन है, क्योंकि हम आयोडीन यूज करते हैं, आयोडीन इज क्वाइट एक्सपेंसिव, तो इसमें सॉल्वेंट कंजप्शन बहुत ज़्यादा है विच मेक्स इट कॉस्टली. Coulometric titration is fitted only for samples that contain a small amount of water. हमने बोला ना कि आप 1% का सैंपल के अराउंड इसको डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो. इट फेल्स टू टेल द डिफरेंस बिटवीन फ्री वाटर, बाउंड वाटर, इमल्सिफाइड वाटर. तो इसमें जब आप टाइट्रेशन करते हो, इट कम्स अप with the total amount of water or a moisture content present in that particular analyte, but it fails to detect the difference between the water. Like as कई बार होता है कि crystallized water, जैसे अभी DST में डाइहाइड्रेट, वो फ्री फॉर्म में 2 वाटर प्रेजेंट है, तो whenever it enter into a solvent or solution phase, तो वो वाटर easily separated out हो जाएंगे as compared to that water which is bounded form में. तो ये उनका डिफरेंस बता नहीं पाता. Coulometric titration takes extremely longer periods to determine. क्लियर? उसके अलावा आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, सो यू कैन टेल दैट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज्ड इन अ KF टाइट्रेशन. कई बार पूछा जा सकता है व्हाट काइंड 2 वेज, तो आप हमने डिस्कस करा कि वॉल्यूमेट्रिक हो सकता है, कूलोमेट्रिक हो सकता है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. तो कई बार यूज कर पूछ सकते हैं कि कार्ल फिशर आप और LOD में क्या फ़र्क है. तो you can say that Karl Fischer is only used for moisture content in a sample, but it fails to uh, determine the impurities in the sample, which can be done with the help of LOD. DST क्यों यूज कर रहे हो, ये हमने डिस्कस करा. DST है क्या, उसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है. What is drift in the KF analysis? Most of the time they might be ask you this question. So the reason behind it is a background moisture that detects by KF autotitrate.
जनरली जब एनालिसिस स्टार्ट करते हो उससे पहले जब आप मॉइस्चर कंटेंट देखना चाहते हो अपने सिस्टम के अंदर, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट. सो व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग pyridine, ये हमने डिस्कस करा. दैट इज इट इज अ कार्सिनोजेनिक, दैट्स व्हाई वी अवॉइड टू यूज इट. एंड व्हेन टू यूज वॉल्यूमेट्रिक, व्हेन टू यूज कार्ल फिशर वॉल्यूमेट्रिक और कूलोमेट्रिक, ये हमने डिस्कस करा. जब वॉल्यूमेट्रिक हो तो हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है 1% से कम हो तो वी विल प्रेफर टू यूज दैट. अदरवाइज आप कूलोमेट्रिक यूज करते हो. वाई टू यूज KF फॉर द वाटर डिटर्मिनेशन. KF ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये हमारे स्मॉल क्वांटिटी सैंपल को यूज करता है. फास्ट टेक्निक है, स्पेसिफिक है और वाइडली यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल्स. प्रिंसिपल हमने डिस्कस करा कि इसमें बेसिकली टाइट्रेशन परफॉर्म हो रही है हमारे सैंपल के अंदर के वाटर कंटेंट की, किसके साथ? आयोडीन, सल्फर डाइऑक्साइड, बेस और pyridine, नाइट्रोजन बेस और आपका जो बेस इथेनॉल मिथेनॉल होगा, उनके साथ एक कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन परफॉर्म हो रही है. I think that's all which I want to say or to cover in the Carl Fisher, which may be helpful in giving during your viva or any kind of exam in which Carl Fisher is a topic to be asked. That's all about this video. I hope this will help you to understand Carl Fisher in a better sense. Let me know in the comment section whether this video is helpful for you or not. Thank you. Keep learning, guys, and Har Har Mahadev.